नमस्कार, मैं हूं सुमन तिवारी और आप मेरे साथ देख रहे हैं VNM टीवी। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों के साथ हम फिर एक बार हाजिर हैं। चीनी के दाम बढ़ने से देश भर में हाहाकार, केंद्र सरकार एक्शन में। गुजरात मॉडल की स्कूलों पर सवालिया निशान, छात्रों को मंदिर में पढ़ाने पर उठे सवाल। वडोदरा में स्कॉलरशिप पर ABVP का प्रदर्शन, स्टूडेंट्स को जल्द स्कॉलरशिप देने की मांग। देश भर में चीनी की बढ़ती कीमतों ने त्योहार के मौसम में हाहाकार मचा दिया है। चीनी की बढ़ती कीमतों के बीच देशवासियों के लिए राहत की बड़ी खबर सामने आई है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन यानी ISMA ने साफ किया है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और आने वाले दिनों में रिटेल कीमतों में कमी आने की उम्मीद है। पिछले एक महीने से चीनी के दाम 20% से ज्यादा बढ़कर 56 से 60 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। कीमतों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने 10 लाख टन रॉ शुगर की ड्यूटी फ्री आयात को मंजूरी दी है। एसोसिएशन के अध्यक्ष नीरज शिरगांवकर ने कीमतों में तेजी के पीछे जमाखोरी और मौसम संबंधी समस्याओं के कारण कम उत्पादन को प्रमुख वजह बताया है। वहीं कीमतें 56 से 60 रुपए प्रति किलो तक पहुंचने के बाद केंद्र सरकार ने 20 अगस्त को 10 लाख टन रॉ शुगर को बिना सीमा शुल्क आयात की अनुमति दी है। इसका मकसद बाजार में सप्लाई बढ़ाकर कीमतों को नियंत्रित करना है। I want to begin by putting one message on the table very clearly, right at the outset, because it will frame everything I say after this. India does not have a sugar shortage. Our production and stock position remains fundamentally comfortable. What we are addressing today is a short-term issue of market sentiment ahead of the festive season and a set of calibrated temporary measures designed to manage that sentiment. It's not a structural supply problem. Where things stand and production and stocks, for 2025-26, the net sugar production is estimated at around 279 lakh tons, with a projected closing stock of roughly 35 lakh tons. That is a healthy buffer against normal domestic demand, even after accounting for the sugar which is diverted to ethanol. So while retail prices have moved from around 48 rupees per kg in July to roughly 55 to 56 rupees per kg this month, a rise of about 16%, that increase is not driven by any actual shortfall in availability. What is actually driving the price rise? The rise reflects several factors coming together, not one single cause. Domestic output for the season came in below the initial projections, revised to around 309 lakh tons, mainly due to the weather-related effects, lower cane yield, and lower recovery, including a higher crush rate in Maharashtra and red rot related varietal issues in Uttar Pradesh. Festival season buying has also picked up, as it does every year. Globally, lower estimated sugar production in Brazil has tightened supplies and pushed international prices from around $474 a ton in June to around $552 a ton in August. But the largest contributor has been speculative behavior. This has been happening for the last few weeks, and due to this, what's happening is that some of the bulk buyers who would normally procure just in time have begun stocking, and due to the stocking which is happening for a month and a half or two in advance, that behavior has pulled sugar out of circulation and it stays in the godowns, creating an artificial tightness. एक और बच्चों के भविष्य के बड़े बड़े दावे और दूसरी ओर तस्वीरें ऐसी कि सवाल उठना लाजमी है कि क्या इन हालात में पढ़कर ये बच्चे देश का भविष्य बना पाएंगे। गुजरात मॉडल की बड़ी बड़ी बातें देश भर में की जाती है, लेकिन गुजरात के महानगर वडोदरा जिला के सावली के भगाना मुवाड़ा गांव से सामने आई ये तस्वीरें शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। यहाँ कक्षा पहली से लेकर 5वीं तक के करीब 30 बच्चे करड़ नदी के किनारे मंदिर के शेड के नीचे बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर है।
यह है कि पढ़ाई की इस जगह पर बिजली और पंखे जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। इतना ही नहीं, गांव की आंगनवाड़ी के करीब 25 बच्चों के लिए भी कोई अलग व्यवस्था नहीं है। मासूम बच्चे दूध की डेयरी में पढ़ाई कर रहे हैं। 5मा ધોરણ ખુલ્લા સાઈડ નીચે पंखो છે અહીંયા ના लाइट ના पहली से 5वीं तक के करीब 30 बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी यहाँ सिर्फ 2 शिक्षकों पर है। सवाल सिर्फ स्कूल बिल्डिंग का नहीं, सवाल बच्चों के भविष्य का भी है। ઘોઘાના ગ્રામની પ્રાથમિક શાળા અને આંગણવાડી તો છેલ્લા 6-7 વર્ષથી જર્જરિત અવસ્થામાં છે અને પ્રાથમિક શાળા પણ છેલ્લા 1.5 વર્ષથી પાડી દીધેલી છે। હજી સુધી નવીન મકાન બનાવવામાં આવતું નથી। આ બાબતે મેં પોતે આ ગામના જાગૃત નાગરિક તરીકે હું પોતે વકીલ છું, વકીલાતના વ્યવસાય સાથે જોડાયેલો છું અને મેં પોતે પણ સરકારને રજૂઆતો કરેલી છે। તાલુકા કક્ષાએથી માંડીને જિલ્લા કક્ષા સુધી, જિલ્લા કલેક્ટર સુધી, ધારાસભ્ય સુધી દરેક જગ્યાએ અમે રજૂઆતો કરેલી છે, પરંતુ છતાં પણ આજ દિન સુધી અમારા ગામની પ્રાથમિક શાળા અને આંગણવાડીના મકાનો બનાવવામાં આવતા નથી। આ લોકોનો મને જવાબ લિખિતમાં એવો આપ્યો છે કે ભાઈ આંગણવાડી અને પ્રાથમિક શાળા આ બંનેનો રાજ્ય કક્ષાએથી સ્ટેટ લેવલેથી વર્ક ઓર્ડર બાકી છે। વર્ક ઓર્ડર આવશે ત્યારે તમારું કામ થશે, પરંતુ આ વર્ક ઓર્ડરની રાહમાં ને રાહમાં આજે આ ભર ચોમાસાની અંદર આ બાળકોને કેટલી બધી મુશ્કેલી પડી રહી છે। આંગણવાડીના બાળકો જે છે એ એક સામાન્ય નાનકડા એક ડેરીના મકાનની અંદર ભણી રહ્યા છે, જ્યારે બીજી બાજુ પ્રાથમિક શાળાના જે બાળકો છે એ એક મંદિરનો શેડ છે એ ખુલ્લી જગ્યાની અંદર ભણી રહ્યા છે। આ ખુલ્લી જગ્યાની અંદર ચોમાસાની અંદર ઘણા બધા એવા જીવજંતુઓ નીકળે છે, જે ઝેરી જનાવરો નીકળે છે। બાળકોને કેટલી બધી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે છે, વિદ્યાર્થીઓને, વાલીઓને ઘણી બધી સામનો કરવો પડે છે। એટલા માટે સરકારને અમે કહેવા માંગીએ છીએ કે તમે તમારી ઊંઘ ક્યારે ઉડશે અને ક્યારે તમે જાગશો। આ તમારી કુંભકર્ણની જે નિંદ્રા છે એ નિંદ્રાને જગાડો, બાકી અમારે ના છૂટકે આ જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારીની કચેરીએ અમારે ઉગ્રમાં ઉગ્ર આંદોલન કરવું પડશે, જેની નોંધ લેવામાં આવે। बताया जा रहा है कि नई स्कूल बिल्डिंग को करीब 2 साल पहले ही अनुमति मिल चुकी है, लेकिन इसके बावजूद स्कूल बिल्डिंग अब तक तैयार नहीं हो पाया है। आखिर मंजूरी के 2 साल बाद भी स्कूल की इमारत अधूरी क्यों है? बच्चों को बुनियादी सुविधाओं के लिए कब तक इंतजार करना पड़ेगा और जिम्मेदार विभाग इस स्थिति का जवाब कब देगा? છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી આંગણવાડી કેન્દ્ર અને પ્રાથમિક શાળા જે જર્જરિત હાલતમાં છે, ડિમોલેશન કરેલી છે। એટલા માટે પ્રાથમિક શાળાના લગભગ 30થી વધારે બાળકો અને આંગણવાડી કેન્દ્રના 25થી વધારે બાળકો એ હાલમાં આટલેગાડી શેડ નીચે બની રહ્યા છે। શેડ ખુલ્લાની અંદર અને બાજુમાં કરણ નદી વહે છે। અમારા બાળકોનું જીવ જોખમમાં છે અને અમારા બાળકોને છત મળે એટલા માટે અમે સરકારશ્રી પાસે વહેલી તકે આંગણવાડી કેન્દ્રનું બાંધકામ ચાલુ થાય અને પ્રાથમિક શાળાનું બાંધકામ ચાલુ થાય તેવી અમે માગણી કરીએ છીએ। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब स्कूल की नई इमारत को 2 साल पहले ही अनुमति मिल चुकी है, तो आखिर अब तक बिल्डिंग तैयार क्यों नहीं हुई? बच्चे तो रोज स्कूल पहुंच रहे हैं, अब क्या जिम्मेदार तंत्र भी अपनी जिम्मेदारी तक पहुंचेगा? सवाल बड़ा है, जवाब ढूंढने की जरूरत है। गुजरात के वडोदरा में स्कॉलरशिप को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मोर्चा खोल दिया है। छात्रों की छात्रवृत्ति की राशि जल्द जारी करने की मांग को लेकर कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रशासन को आवेदन पत्र दिया है। वडोदरा में एबीवीपी ने कई छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिलने का मुद्दा उठाया है और स्कॉलरशिप आवेदनों का समयबद्ध तरीके से निपटारा करने की मांग की है। MYSY और CMSS की राशि अटकने से बड़ी संख्या में छात्र परेशान है। वहीं प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रों की स्कॉलरशिप भी बाकी है। एबीवीपी का कहना है कि स्कॉलरशिप में देरी से आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। ऐसे में जल्द से जल्द इन छात्रों को स्कॉलरशिप प्रदान की जाए। आज रोज दरेक जिला केन्द्र पर कलेक्टरश्री ने आवेदन आपवानुं आयोजन हतुं, जेमां विषय हतो के गुजरात प्रदेशभरमां अलग अलग जे शिष्यवृत्ति छे ते विद्यार्थीओने समयसर नथी मळती अथवा तो अमुक जे स्कॉलरशिप छे जे साव मळती ज नथी, जे खरेखर विद्यार्थीने मळवापात्र छे, जेथी विद्यार्थी उपर क्यांक ने क्यांक आर्थिक भारण वधी रह्युं छे तेवुं जाणवा मळे छे। जेथी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सरकारश्री समक्ष स्पष्ट मागणी करे छे के आ स्कॉलरशिप समयसर आपवामां आवे, अन्यथा विद्यार्थी परिषद द्वारा गुजरात प्रदेशभरमां अलग अलग स्थानों पर उग्रથી उग्र आंदोलन કરવામાં આવશે, જેની સંપૂર્ણ જવાબદારી તંત્રની રહેશે। गुजरात के वडोदरा में सिंधी समाज की संस्कृति और परंपराओं को नई पीढ़ी से जोड़ने के उद्देश्य से भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
वडोदरा में सिंधी समाज की संस्कृति और परंपरा को जीवंत रखने की अनोखी पहल देखने मिली। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसमें समाज के कई गणमान्य लोग और अग्रणी मौजूद रहे। कार्यक्रम में बच्चों ने सिंधी भाषा, संस्कृति और परंपरा पर आधारित डांस और ड्रामा प्रस्तुत किए। खास तौर पर नाटक के जरिए बच्चों को अपनी संस्कृति और विरासत से जोड़ने का प्रयास किया गया। करीब 115 बच्चों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिसमें 80 बच्चों ने अलग अलग डांस प्रस्तुतियां दी। वहीं अहमदाबाद से पहुंचे करीब 30 कलाकारों ने भी अपनी कलात्मक प्रस्तुतियों से कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। सिंधी समाज के अग्रणी सन्मुख ज्ञानचंदानी ने इस मौके पर कहा कि ऐसे कार्यक्रम नई पीढ़ी को अपनी जड़ों और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने में अहम भूमिका निभाते हैं। आज जीतू हिरानी टीम द्वारा आज प्रोग्राम रखा गया है और ये प्रोग्राम दर साल भी करते हैं और ये साल भी प्रोग्राम किया गया है। और ये प्रोग्राम के अंदर छोटे से छोटा बच्चा और बड़े भी ये प्रोग्राम में बहुत सारा अच्छा परफॉर्मेंस करा है। अच्छा सा बहुत नृत्य हुए कि सिंधी समाज को सुजाग करने के लिए हर एक बात जो बोली है ना वो बहुत अच्छी तरह से बोला है। और जीतू हिरानी ने ये प्रोग्राम करने के लिए बहुत सारी मेहनत की है और उनके साथ में जो सपोर्ट है, छोटे बड़े सब बच्चे उनके सपोर्ट में रहे। और प्रेम प्रकाश धर्मतीर्थ संघ के श्री मुकेश साईं और दूसरे सभ्य और प्रेम प्रकाश धर्मतीर्थ के सेवादारी और सिंधी समाज के अग्रणी छोटे बड़े सब आए इधर। और सब जीतू हिरानी ने जो प्रोग्राम कराए ये जो वो बहुत सराहनीय लायक है कि ये आगे भी ये प्रोग्राम करता रहे, है हमारी आशा है। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए VNM न्यूज। रोज सुबह उठकर हम सीधा फोन अनलॉक करते हैं, यूपीआई से पेमेंट करते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, लेकिन आपको पता है ये सब बनाता कौन है? मुझे टेक्नोलॉजी का सिर्फ यूजर नहीं बनना है। आई वॉन्ट टू नो द लॉजिक बिहाइंड इट। डेटा डिसीजन कैसे लेता है, सिस्टम को हैकर से कैसे प्रोटेक्ट करना है और AI दुनिया को कैसे बदल रहा है। और इसीलिए मैंने चूज किया BCA एट सिग्मा यूनिवर्सिटी। यहाँ साइबर सिक्योरिटी के थ्रू हम सीखते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और थ्रेट डिटेक्शन, और डेटा साइंस के थ्रू डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग और AI फंडामेंटल्स, पाइथन, R प्रोग्रामिंग, SQL और बूटस्ट्रैप जैसे इंडस्ट्री टूल्स के साथ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स और प्रैक्टिकल एक्सपोजर। क्योंकि कल अपॉर्चुनिटीज उन्हीं के पास होंगी जो आज टेक्नोलॉजी समझेगा। सपनों से सफलता तक करो करियर की सही शुरुआत BCA एट सिग्मा यूनिवर्सिटी। एडमिशंस ओपन। नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण। मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया। पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की। इसीलिए हम सारा गंडवेकर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया। हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार, जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं, सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है, सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं। सारा गंदेविकर बिलीव्स इन ग्रोथ विद हैप्पीनेस। समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया। सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहाँ रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है। सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट। हम एक्चुअली साइंस की तरफ से सर, साइंस की तरफ से। लेकिन सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं, हम वो है जो क्वेश्चंस पूछते हैं, जो आंसर्स डिस्कवर करते हैं, जो एक आइडिया को इनोवेशन में बदलते हैं। एक डिस्कवरी जो किसी की लाइफ बदल दे, एक रिसर्च जो फ्यूचर की डायरेक्शन बदल दे। और यहाँ सिग्मा यूनिवर्सिटी में बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम एक्सप्लोर करते हैं जेनेटिक्स, हेल्थ केयर और इनोवेशंस। फूड टेक्नोलॉजी से समझते हैं कि फूड को सेफर और बेटर कैसे बनाया जाए, और फॉरेंसिक साइंस से सीखते हैं कि एविडेंस को डिकोड कर कर सच तक कैसे पहुंचा जाए। बिकॉज साइंस सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, साइंस इज द पावर टू क्रिएट अ सॉल्यूशन। अपनी क्यूरियोसिटी को अपना करियर बनाओ। स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस। सपनों से सफलता तक करियर की सही शुरुआत। साइंस स्ट्रीम एट सिग्मा यूनिवर्सिटी। एडमिशंस ओपन।
Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. हर दिन हम हजारों लोगों से मिलते हैं, पर क्या हम उन्हें सच में समझते हैं? एक इंसान जो हमेशा स्माइल करता है, शायद वो अंदर से स्ट्रगल कर रहा हो। एक पर्सन जो साइलेंट है, शायद उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ। See, human mind is complex, and understanding it takes more than just observation. That's what made me choose art at Sigma University. Through psychology, I learn about human emotions, behavior, and thoughts. Because the biggest mystery in the world is the human mind itself. Explore it, understand it, build your future with it. सपनों से सफलता तक, आर्ट्स एट सिग्मा यूनिवर्सिटी। करियर की सही शुरुआत सिग्मा यूनिवर्सिटी के साथ। एडमिशंस ओपन। गुजरात के वडोदरा जिला में सोशल मीडिया पर किए गए एक कमेंट को लेकर बीजेपी के ही दो गुट आमने सामने आ गए। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों के बीच सड़क पर जमकर मारपीट हुई और एक दूसरे के कपड़े तक फाड़ दिए गए। वडोदरा के डबोई के भीलापुर गांव में सोशल मीडिया के एक कमेंट को लेकर बीजेपी के दो गुटों के बीच विवाद हो गया। जानकारी के मुताबिक जिला पंचायत स्वास्थ्य समिति के चेयरमैन भावेश पटेल के फेसबुक पेज पर एक पोस्ट की गई थी। इसी पोस्ट पर की गई कमेंट को लेकर दोनों पक्षों में पहले कहासुनी हुई और देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया। बताया जा रहा है कि दोनों गुटों के बीच पहले से ही आपसी रंजिश चल रही थी और सोशल मीडिया के इस कमेंट ने विवाद को और बढ़ा दिया। आरोप है कि सार्वजनिक सड़क पर ही दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे के साथ जमकर मारपीट की। इस दौरान कुछ लोगों के कपड़े फाड़ दिए गए, जबकि कई लोग घायल हुए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। घायल परेश पटेल के मुताबिक भीलापुर गांव की सीमा के पास डिप्टी सरपंच और कुछ अन्य लोग बैठे थे। इसी दौरान जिला पंचायत स्वास्थ्य समिति के चेयरमैन भावेश पटेल और उनके साथी वहां पहुंचे। फेसबुक पर शराब और जुए से संबंधित पोस्ट पर की गई उनकी कमेंट को लेकर कहासुनी शुरू हुई। इसी दौरान पीछे से किसी ने उनके सिर पर वार कर दिया, जिससे उनकी हालत बिगड़ गई और वो बेहोशी जैसी स्थिति में पहुंच गए। फिलहाल मारपीट के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और पूरे मामले को लेकर गांव में चर्चा का माहौल है। गुजरात के वडोदरा में सिंधी समाज की संस्कृति और परंपराओं को नई पीढ़ी से जोड़ने के उद्देश्य से भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वडोदरा में सिंधी समाज की संस्कृति और परंपरा को जीवंत रखने की अनोखी पहल देखने मिली। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसमें समाज के कई गणमान्य लोग और अग्रणी मौजूद रहे। कार्यक्रम में बच्चों ने सिंधी भाषा, संस्कृति और परंपरा पर आधारित डांस और ड्रामा प्रस्तुत किए। खास तौर पर नाटक के जरिए बच्चों को अपनी संस्कृति और विरासत से जोड़ने का प्रयास किया गया। करीब 115 बच्चों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिसमें 80 बच्चों ने अलग अलग डांस प्रस्तुतियां दी। वहीं अहमदाबाद से पहुंचे करीब 30 कलाकारों ने भी अपनी कलात्मक प्रस्तुतियों से कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। सिंधी समाज के अग्रणी सन्मुख ज्ञानचंदानी ने इस मौके पर कहा कि ऐसे कार्यक्रम नई पीढ़ी को अपनी जड़ों और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने में अहम भूमिका निभाते हैं। आज जीतू हिरानी टीम द्वारा आज प्रोग्राम रखा गया है और ये प्रोग्राम दर साल भी करते हैं और ये साल भी प्रोग्राम किया गया है। और ये प्रोग्राम के अंदर छोटे से छोटा बच्चा और बड़े भी ये प्रोग्राम में बहुत सारा अच्छा परफॉर्मेंस कराया, अच्छा सा बहुत नृत्य हुए कि सिंधी समाज को सुजाग करने के लिए हर एक बात जो बोली है ना वो बहुत अच्छी तरह से बोला है। और जीतू हिरानी ने ये प्रोग्राम करने के लिए बहुत सारी मेहनत की है और उनके साथ में जो सपोर्ट है, छोटे बड़े सब बच्चे उनके सपोर्ट में रहे। और प्रेम प्रकाश धर्मतीर्थ संघ के श्री मुकेश साई और दूसरे सभ्य और प्रेम प्रकाश धर्मतीर्थ के सेवादारी और सिंधी समाज के अग्रणी छोटे बड़े सब आए इधर और सब जीतू हिरानी ने जो प्रोग्राम कराए ये जो वो बहुत सराहनीय लायक है कि ये आगे भी ये प्रोग्राम करता रहे, है हमारी आशा है। श्रावण के दूसरे सोमवार पर वडोदरा के मंदिरों में आस्था का सैलाब देखने को मिला।
एलोरा पार्क के आत्मज्योति मंदिर में भगवान मृत्युंजय महादेव के दर्शन के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। श्रावण के पावन महीने के दूसरे सोमवार को वडोदरा के सुभानपुरा में स्थित आत्मज्योति मंदिर में भक्तिमय माहौल देखने मिला। भगवान मृत्युंजय महादेव का विभिन्न रंग बिरंगे फूलों से मनमोहक श्रृंगार किया गया। सुबह से ही श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ का दूध और बिलीपत्र से अभिषेक किया। मंत्रोच्चार के साथ भक्तों ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर महादेव का आशीर्वाद लिया। पूरे मंदिर परिसर में गूंजते हर हर महादेव और जय भोलेनाथ के जय घोष ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। अन्य मंदिर में दरेक तहेवारे बहुत सरस एम शणगार करे, सेवा बधा आपे छे। અહીંનું દ્રષ્ટિગણ બહુ સારું છે અને દર વર્ષે નોટોનું પણ ફ્રી વિતરણ કરે છે અને દરેક પ્રોગ્રામ સારી રીતે કરે છે, બધા સંપીને રહે છે અને આ જે શણગારે છે શિવજીનો તો એ બધા અહીંના જે લેડીઝો હરિભક્તો છે એ બધા સાથ આપી અને અમે લોકો આ ભોળાનાથનો શણગાર કરીએ છીએ। શિવરાત્રિમાં ભાંગ બી બધાને ફ્રી વિતરણ જ કરીએ છીએ। એટલે અહીંયા જે કંઈ પ્રવૃત્તિ થાય છે તમે જે કંઈ દાન આપો છો એનો બહુ જ સદુપયોગ કરીએ છીએ। છેલ્લા 20 વર્ષથી આ સેવા આપું છું અને અમારા જે સંસ્થાના સ્થાપક છે આત્મજ્યોતિ આશ્રમના પૂજ્ય સ્વામી શિવાનંદ સ્વામી હતા, જે 1981 એટલે કે 35 વર્ષથી આ હિમાલય તપસ્યા માટે નીકળી ગયા અને અમે ટ્રસ્ટી મંડળ જે અમારી બાજુમાં મયંકભાઈ પંડ્યા છે બાજુમાં છે એ બધા જ અત્યારે ટ્રસ્ટી મંડળ જ આશ્રમને ચલાવે છે અને આપ જોઈ શકો છો બેક સાઈડમાં કે શિવજીનો શણગાર અને શ્રાવણ મહિનો આખો ધામધૂમથી ઉજવવામાં આવે છે। સાથે સત્સંગ કરવામાં આવે છે, ગીતા ઉપર પ્રવચન કરવામાં આવે છે, રામચરિત માનસના પાઠ કરવામાં આવે છે અને લોકો આશ્રમનો પૂરેપૂરો લાભ ઉઠાવે એવા અમારા પ્રયત્નો હોય છે। એ એક અમારી ગુરુની દિવ્ય ચેતના કામ કરી રહી છે। આજે વર્ષો પહેલાં આવા હિમાલયના તપસ્વી જે દુનિયાભરમાં દરેક દેશોમાં આપણા સનાતન સંસ્કૃતિનો જેને પ્રચાર કર્યો છે, બહાર 10 વર્ષ સુધી દુનિયાના કોઈ દેશ એવા નથી કે જ્યાં આપણી સંસ્કૃતિનો પ્રચાર ન થયો હોય। ત્યાર પછી એ ભારતમાં પાછા આવ્યા અને આશ્રમ સ્થાપી અને ટ્રસ્ટીઓને હેન્ડઓવર કરી અને હિમાલય જતા રહ્યા। એ ગુરુની ચેતના જ કામ કરે છે, જેથી કરીને સવારના 6 વાગ્યાથી રાતના 10 વાગ્યા સુધી અમારે કન્ટિન્યુ આશ્રમ ખુલ્લો રાખવો પડે કે દર્શનાર્થી સતત હોય છે, તમે જોઈ શકો છો। गुजरात में मेहसाणा महानगर पालिका की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में कुल 13 महत्वपूर्ण दरखास्तें पेश की गई हैं, जिसमें विकास कार्यों से लेकर पानी, गटर, सड़क जैसे कई अहम मुद्दे शामिल हैं। मेहसाणा महानगर पालिका की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में कुल 13 दरखास्तें चर्चा के लिए रखी गई हैं। गुजरात हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र के अंधेरी पंपिंग स्टेशन की राइजिंग लाइन के लिए तकरीबन 3 करोड़ 96 लाख रुपए से अधिक के खर्च का प्रस्ताव है। वहीं महितियापारा क्षेत्र में नई भूमिगत गटर लाइन के लिए करीब 15,92,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। अब इन सभी 13 प्रस्तावों पर स्टैंडिंग कमेटी क्या फैसला लेती है, इस पर सभी की नजर रहेगी। आज મહેસાણા મહાનગરપાલિકાની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની બેઠક મળેલ, જેમાં કમિશનર શાલિની મેડમ, ડેપ્યુટી કમિશનર મંડોરી સાહેબ તેમજ સૌ કારોબારી સદસ્યો હાજર રહેલ। રૂટીન કામો પ્રમાણે આજે 13 દરખાસ્ત હતી, 13 દરખાસ્ત સર્વાનુમતે મંજૂર કરેલી છે। વિશેષમાં મહેસાણા સ્મશાન ખાતે અત્યાર સુધી અંતિમ વાહન યાત્રાનું જે મફતમાં સેવા આપવામાં આવતી હતી તેને 50 કિલોમીટરના એરિયા સુધી સ્મશાન જો હોય તો ત્યાં સુધી મફતમાં આપવાનું સર્વાનુમતે ठहरावेल છે। अब वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए VNM टीवी। गुजरात की हवाओं में व्यापार है साहेब। रियल बिजनेस तब समझ आता है जब आप मार्केट में उतरते हो। सिग्मा यूनिवर्सिटी का BBA कोर्स देता है आपको रियल एक्सपोजर, रिटेल, लाइव प्रोजेक्ट्स और लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन के साथ। इंटर्नशिप्स, इंडस्ट्री विजिट्स, hands-on learning, real business understanding. Not only management, you'll get to learn decision making too. कल के एम्प्लॉयज नहीं,
फ्यूचर के लीडर्स बनो, सपनों से सफलता तक करो करियर की सही शुरुआत। BBA at Sigma University. Admissions open. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyasa's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. अगर सिर्फ थियरी से इंजीनियर बनते तो दुनिया इतनी आगे नहीं बढ़ती। रियल इंजीनियरिंग होती है जब आप बनाते हो, टेस्ट करते हो, फेल होते हो और फिर दोबारा बनाते हो। सिग्मा यूनिवर्सिटी में बीटेक का मतलब है 65% प्रैक्टिकल लर्निंग। हर सेमेस्टर में इंटर्नशिप, रियल प्रोजेक्ट्स, हैकाथॉन और इंडस्ट्री एक्सपोजर। और सिर्फ ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस, एक ही कोर्स में फ्यूचर रेडी स्किल्स। यहाँ पे सिर्फ आप पढ़ते नहीं हो, इंडस्ट्री के लिए प्रिपेयर होते हो। सिर्फ डिग्री नहीं, कैपेबिलिटी बिल्ड करो, सपनों से सफलता तक। स्टार्ट योर इंजीनियरिंग विद सिग्मा यूनिवर्सिटी। एडमिशंस ओपन। मे आई कम इन सर? होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। ताराज किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। ताराज कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। ताराज बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वेकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, વડોદરા। એક બાળક જ્યારે પોતાનો પહેલો શ્વાસ લે છે ત્યારે ડોક્ટર્સની પહેલા અમે નર્સ ત્યાં હોઈએ છીએ। અમે માત્ર ઇન્જેક્શન જ નથી આપતા, અમે એક આશા પણ આપીએ છીએ। સિગ્મા યુનિવર્સિટીમાં નર્સિંગ કોર્સ માત્ર ટેક્સ્ટબુક નથી, 70% પ્રેક્ટિકલ ટ્રેનિંગ છે। પ્રી ક્લિનિકલ લેબ, મેટર્નલ એન્ડ ચાઇલ્ડ હેલ્થ લેબ, કમ્યુનિટી હેલ્થ લેબ સાથે રિયલ વર્લ્ડ સ્કિલ્સ એન્ડ રિયલ વર્લ્ડ કોન્ફિડન્સ। ઇન્ડિયન નર્સિંગ કાઉન્સિલ અને ગુજરાત નર્સિંગ કાઉન્સિલ માન્ય કોર્સ એટલે સિગ્મા યુનિવર્સિટીનો નર્સિંગ કોર્સ। કેન્સર હોસ્પિટલની ફેસ ટુ ફેસ વિઝિટ, બ્લડ બેંક, ઓલ્ડ એજ હોમ વિઝિટ્સ। સિગ્માના સ્ટુડન્ટ્સ ક્લાસરૂમની બહાર જીવન શીખે છે। મારા માટે નર્સિંગ એક જોબ નથી, એક કોલિંગ છે। જો તમારામાં સેવાની ભાવના છે, જીવન બચાવવાની ઈચ્છા છે, તો સિગ્મા યુનિવર્સિટીનો નર્સિંગ કોર્સ તમારા માટે જ છે। સપનાઓથી સફળતા સુધી કરિયરની શરૂઆત નર્સિંગ ઓનલી એટ સિગ્મા યુનિવર્સિટી। એડમિશન્સ ઓપન। कुछ लोगों को करियर बनाना था, पर मुझे फर्क लाना था। लोगों की प्रॉब्लम समझनी थी, कम्युनिटीज के साथ काम करना था, रियल चेंज का हिस्सा बनना था।
इसीलिए मैंने चूज़ किया सोशल वर्क एट सिग्मा यूनिवर्सिटी, जहाँ 70% प्रैक्टिकल लर्निंग के थ्रू फील्ड विजिट, NGO एक्सपोजर, NSS एक्टिविटीज़ और रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलते हैं। यहाँ हम सिर्फ सोशल वर्क पढ़ते ही नहीं, सोशल वर्क करते भी हैं। कल का बदलाव आज से शुरू होता है, सपनों से सफलता तक। करो करियर की सही शुरुआत, सोशल वर्क एट सिग्मा यूनिवर्सिटी। एडमिशन ओपन नाउ। सोने की चमक तो हर आभूषण में होती है, लेकिन अगर उस चमक में सदियों पुरानी भारतीय कला, संस्कृति और विरासत की झलक देखने को मिल जाए तो उसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा खास हो जाती है। और इसी सोच के साथ सारा गंदेविकर लेकर आया है सारा हेरिटेज द ग्रैंड ज्वेलरी शो, जहां पर भारत की समृद्ध विरासत और पारंपरिक कलाओं से प्रेरित नायाब कृतियों को एक ही छत के नीचे शोकेस किया गया है। आपको बता दें कि सारा हेरिटेज इस आयोजन के ज़रिए भारतीय क्राफ्टमैनशिप की बारीकियों को और हमारी सांस्कृतिक विरासत को एक अलग अंदाज में पेश कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कि सारा हेरिटेज में इस फेस्टिवल सीजन के लिए क्या क्या खास है। इस वक्त हमारे साथ स्वाति गंडेविकर जी मौजूद हैं, जो सारा हेरिटेज की ओनर हैं। तो चलिए उनसे सीधे तौर पर जानते हैं कि इस खास शोकेस में कौन कौन सी नई वैरायटीज़ और नए कलेक्शन देखने को मिलेंगे। तो जी, जैसा कि यहाँ पर सारा हेरिटेज द्वारा एक खास शोकेस का आयोजन किया गया है, तो कौन कौन सी वैरायटीज़ दर्शकों को देखने को मिल सकती है, कस्टमर्स जहाँ ये ग्राहक आएंगे। जी, आज सारा हेरिटेज हमारा जो सेक्शन है वहाँ पे हमने सारा द हेरिटेज प्रीमियम ज्वेलरी जो रहती है, जो ब्राइडल के रिलेटेड, उसका हमने एक बहुत ही चुनिंदा जो पीसेस रहते हैं, ज्वेलरी पीसेस, तो उसका हमने एक शोकेस रखा है यहाँ पे। और आज का हमारा अगर कुछ नया क्या है कहा जाए हमारे ग्राहक मित्रों के लिए, तो हमने आज एक न्यू पोल्की का, रियल पोल्की का जो कलेक्शन है वो हमने आज लॉन्च किया है। आप देख सकते हैं, विरासत बाय सारा। तो ये हमारे नए कलेक्शन का नाम है, विरासत बाय सारा। और इसके अलावा हमारे पास जो ब्राइडल ज्वेलरी होती है, जिसमें हेरिटेज ज्वेलरी है, कलकत्ती ज्वेलरी है, जो खास कलकत्ता के जो कारीगर होते हैं, बहुत ही बारीकी से काम होता है। हर एक चीज़ को जो क्राफ्टमैन है वो हाथों से बनाया जाता है उससे। उसके अलावा जयपुर की जो मीनाकारी की ज्वेलरी होती है, जैसे कुंदन की ज्वेलरी होती है, या फिर जो साउथ का स्पेशल कलेक्शन है, जो इंस्पायर्ड रहता है साउथ के जो मंदिर हैं, वहाँ के जो आइडल्स हैं, उनके रिलेटेड जो भी चीज़ें रहती है, ख़ास करके उन मोटिव्स के आधार पे ये ज्वेलरी बनाई जाती है। और आप हमारे यहाँ पे अगर आप विज़िट करते हैं तो आप हर एक जो ज्वेलरी है उसकी बारीकी को अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत मतलब छोटी छोटी जो आइडल्स है उसमें भी बहुत मतलब बारीकी से काम किया गया है। उसी तरह से राजस्थान की जो स्पेशलिटी है, आर्ट नेकलेस है या फिर बोरला है, माथा पट्टी है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, वो भी हमने यहाँ पे एग्जिबिट की हुई हैं। उसके अलावा हमारे महाराष्ट्र की जितनी भी ट्रेडिशनल ज्वेलरी है वो भी आप यहाँ पे देख सकेंगे। और मतलब ब्राइडल के लिए ख़ास करके ये एग्ज़िबिशन बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर देखा जाए तो। और हमारे सारा गंडेविकर ज्वेलर्स को इन 1927 में जब शुरुआत हुई थी, तो अब 100 इयर्स कंप्लीट होने वाले हैं। तो उसी के सेलिब्रेशन में भी ये एक एग्ज़िबिशन रखा गया है और हमारा जो न्यू कलेक्शन है वो उसी के लिए लॉन्च भी किया गया है। पोल्की का कलेक्शन, नेचुरल पोल्की का कलेक्शन आप देख सकते हैं कि ये जो ज्वेलरी पीस है ये रियल पोल्की से बना हुआ पीस है। और इसमें जितने भी कलर स्टोन्स आप देख रहे हैं वो नेचुरल रूबी है या फिर नेचुरल एमरल्ड है, येलो सफ़ायर है या फिर मिक्स सफ़ायर है, उन चीज़ों का इसमें उपयोग किया गया है। नेचुरल पोल्की जो है वो जब माइंस में से रफ़ निकलती है डायमंड की, तो डायमंड की कटिंग के बाद जो रफ़ बचती है उसका उपयोग एज अ पोल्की, नेचुरल पोल्की इन नेकलेसेस में किया जाता है। तो ये भी उतने ही
प्रीशियस होते हैं जितने कि नेचुरल डायमंड प्रीशियस होते हैं, और इसके अलावा इसकी भी बायबैक वैल्यू भी होती है। और अभी अगर देखा जाए तो जो ट्रेंड चल रहा है कि अभी जो ब्राइड्स हैं उनको बहुत सारे मतलब जो डिज़ाइनर्स हैं उनके जो कलेक्शन रहते हैं, लहंगा है या साड़ी है, तो उनकी पसंद होती है कि मैं अपनी शादी में अपने स्पेशल डे पे कुछ इस तरह से आउटफिट मेरा होना चाहिए। तो वो जो आउटफिट होते हैं उसके ऊपर हमारी जो गोल्ड ज्वेलरी है वो ज़्यादातर उस पर नहीं जाती है, उसके साथ ज़्यादा करके पोल्की जैसी ज्वेलरी ही सूट करती है। तो ब्राइड को भी अब ऐसा होता है कि मेरा स्पेशल डे है तो मैं पोल्की वेयर करूं, तो इसलिए हमने एक नई शुरुआत की है कि हम अपने ग्राहकों के लिए नया क्या ला सकते हैं, तो हमारा ये कलेक्शन उन्हीं के लिए खास बनाया गया है। इस कलेक्शन में जैसे कि इंडियन कल्चर और अलग अलग रीजन्स की कला और ज्वेलरी की झलकियाँ देखने को मिल रही है, तो ये इस वक्त हमारे सामने जो है इसके बारे में कुछ बताइए। जी, ये आप देख सकते हैं कि ये जो डिस्प्ले है इसमें हमने महाराष्ट्रियन ट्रेडिशनल ज्वेलरी जो होती है उसे हमने बहुत ख़ास तरीके से सजा के डिस्प्ले किया हुआ है। अब इसमें जो मुख्य रूप से जो नथ है, जो महाराष्ट्रियन पेशवा के राज्यकाल से जो वेयर होती आई है, वो सारी ज्वेलरी आप इसमें देख सकते हैं, जैसे कि नथ है या फिर ठुशी बोलते हैं, मोहन माला है, लक्ष्मी हार है, पोहा हार है और बोर माला है। और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी डिज़ाइनर ज्वेलरी है जो ट्रेडिशनली महाराष्ट्र में पहनी जाती है या अभी तक लोग उन्हें पसंद करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, सारा हेरिटेज में आपको इंडियन कल्चर और अलग अलग रीजन से जुड़ी खूबसूरत ज्वेलरीज देखने को मिल सकती है। और जैसा कि इस वक्त साउथ इंडियन ज्वेलरी यहाँ पर मौजूद है जिसे बेहद खूबसूरती और बारीकी के साथ तैयार किया गया है, तो इसके बारे में गहराई से हम जानेंगे स्वाति जी से खुद। तो साउथ इंडियन ज्वेलरी जो है वो नॉर्मली जो मंदिर होते हैं वहाँ की जो कारीगरी होती है या फिर जो आइडल्स होते हैं उसके रिलेटेड उसी पे से इंस्पायर्ड होके ये ज्वेलरी बनी हुई होती है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मंगलसूत्र है उसमें जो लक्ष्मी जी है कितनी बारीकी से उसमें काम किया गया है, हर एक सिक्का, उनका मुकुट, जो एलिफेंट है उनके साइड में, तो और जो मंदिर है, जो झरोखे हैं और जो लक्ष्मी जी है उसके ऊपर जो बीड्स बने हुए हैं उनमें एक नॉर्मली बीड्स नहीं है, अगर आप ठीक से देखेंगे तो वो लोटस की डिज़ाइन में बने हुए हैं। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो साउथ इंडियन ज्वेलरी में आपको देखने को मिलती हैं। और हमारे यहाँ जितनी भी ज्वेलरी साउथ से आई हुई है तो उन सब पे आप कुछ न कुछ इस तरह की इम्पॉर्टेंट या फिर बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। मेरे हिसाब से जो फेस्टिवल सीज़न है ख़ास करके वो अब शुरू होने ही वाला है, और साथ ही साथ लगभग जो कस्टमर्स की शादी के लिए जो शॉपिंग होगी वो भी अब शुरू हो ही जाएगी। तो आप कहीं से भी शॉपिंग करें उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि एक बार आपको सारा गंडेविकर में और इस एग्जीबिशन में खासकर ज़रूर विज़िट करना चाहिए, क्योंकि जो भी ज्वेलरी ब्राइड के माइंडसेट में होती है कि मुझे अपने शादी में ऐसा कुछ लुक चाहिए या फिर ऐसी ज्वेलरी मेरे पास होनी चाहिए, तो हमने पूरा प्रयास किया है कि हर तरह की ज्वेलरी हम उन्हें दिखा सके और प्रोवाइड कर सके। इसके अलावा कोई भी ज्वेलरी है तो वो बाय कस्टमाइजेशन भी हम बना के दे सकते हैं। तो मेरा कहना ये है कि आप अपनी शॉपिंग शुरू करें उससे पहले एक बार सारा गंडेविकर ज्वेलर्स के सारा हेरिटेज हॉल में ज़रूर विज़िट कीजिएगा। ये ज्वेलरी शोकेस सारा हेरिटेज हॉल में लगभग 23 अगस्त से शुरू हो चुका है, जो 26 अगस्त तक कंटिन्यू है। और इसके बाद भी बहुत सारी ऐसे डिज़ाइंस हैं जो आप देख पाएंगे और हम आपके लिए प्रोवाइड कर पाएंगे। तो प्लीज़ विजिट सारा हेरिटेज हॉल, द ग्रैंड ज्वेलरी शो।
अगर आप भी इस फेस्टिवल सीज़न कुछ यूनिक और भारतीय कला से जुड़ी विरासत अपने घर लेकर जाना चाहते हैं तो एक बार सारा हेरिटेज को ज़रूर विजिट करिएगा। एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने इस त्योहार को लेकर थोड़ा सा जो स्ट्रेस है हमारा बढ़ा दिया है। देश में शक्कर के दाम बढ़ने वाले हैं और जिसके चलते वो असर हर किसी पर देखा जाने वाला है। હવે રક્ષાબંધન માથા પર છે, મીઠાઈ તો આપણે લેવી જ પડે ને આ ભાવ વધી ગયા છે, આનામાં હવે શું કહેશો? તમારું જે બજેટ હશે એટલામાં જ લેવાનું, ના બજેટ હોય તો કઈ ભૂસું ખવડાવવાનું। 10 रुपया मिलेगा तो 5 रुपया मिलेगा, नफ़ा में कटौती हो जाएगी। सरकार पे आशा लेके बैठे हैं कि भाई थोड़ा दाम घट जाएगा तो वापिस दाम बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा बहनों का त्योहार है, मिठाई बहुत ज़रूरी है, अभी मिठाई के दाम भी बढ़ जाएंगे तो क्या कहेंगे? प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन अभी फेस्टिवल्स है तो लोग एनीवेज खरीदेंगे। चाय तो पीना पड़ेगा। अगस्त का महीना यानी त्योहारों का महीना। अगस्त के महीने से ही त्योहार का सिलसिला शुरू हो जाता है। अभी रक्षाबंधन सर पर है और रक्षाबंधन के लिए हम सभी ने अपनी शॉपिंग को शुरू कर दिया है। और रक्षाबंधन का जब त्योहार आता है तो बिना मिठाई इस त्योहार को हम में से कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता। लेकिन एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने इस त्योहार को लेकर थोड़ा सा जो स्ट्रेस है हमारा बढ़ा दिया है। दरअसल अब देश में शक्कर के दाम बढ़ने वाले हैं और जिसके चलते वो असर हर किसी पर देखा जाने वाला है। लेकिन खासकर रक्षाबंधन के त्योहार में हमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होने वाला है क्योंकि मिठाई के भी भाव बढ़ने की अनुमान है। तो चलिए इस वक्त वडोदरा शहर में हम जाते हैं मिठाई की दुकानों पर और वहाँ पर जाके बात करते हैं कि ग्राहकों का इस पर क्या कहना है और जो दुकानदार है वो इन सारी सिचुएशन को कैसे मैनेज करने वाले हैं। जैसा मैंने कहा कि त्योहारों का जो सिलसिला है बस शुरू ही होने वाला है और एक तरफ ये इजाफा चीनी के भाव में कितना महंगा पड़ सकता है लोगों को सीधे सीधे लोगों से ही जान लेते हैं। मैम आप मिठाई लेने के लिए आए? मिठाई लेने के ये मिठाई का भाव 80 रुपये 100 रुपये का 250 है। अभी रक्षाबंधन सर पे है और अभी ये खबर आई है डबल भाव चढ़े। હવે રક્ષાબંધન માથા પર છે, મિઠાઈ તો આપણે લેવી જ પડે ને આ ભાવ વધી ગયા છે, આનામાં હવે શું કહેશો? તમારું જે બજેટ હશે એટલામાં જ લેવાનું, ના બજેટ હોય તો કઈ ભૂસું ખવડાવવાનું। અને પછી બીજી પણ બહુ બધી વસ્તુઓ છે જેમ કે આપણે સવારની શરૂઆત જ ચાથી થાય છે તો એમાં શું કરશો હવે તમે? સવારમાંથી થાય તો જે સસ્તું ભાવે એ કરવાનું, ના ભાવે તો રોકડી આલી દેવાની, જાઓ ભાઈ જાઓ, થઈ ગઈ વર્ષ હવે રક્ષાબંધન, શું કરવાના? મોંઘવારીમાં ગરીબ મરે ને શ્રીમંત રાજ્યો કરે કે નહીં? એટલે રોજ ચા તો બનાવો જ છો ઘરે, હવે એમાં પણ પીતા નહીં પીતા એટલે તમને સસ્તું સારું પડે? દૂધ જ પીવે છે। जब भी किसी खाने पीने की चीज़ का दाम बढ़ता है, उसके प्राइस में इजाफा होता है तो उसका सीधा सीधा असर जनता की जेब पर तो पड़ता ही है। लेकिन साथ साथ में जो दुकानदार होते हैं, जो रसोइये होते हैं, जो स्वीट शॉप में काम कर रहे होते हैं, उन पर भी उतना ही असर पड़ता है क्योंकि अब वो जो सामान बेच रहे हैं उसे किस तरह से बेचेंगे, किस तरह से वो अब क्वांटिटी बनाएंगे, इस पर भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। और इसलिए हम इस वक्त वडोदरा शहर में निकल पड़े हैं और जो मिठाइयों की दुकान है वहाँ पर हम आ पहुँचे हैं। वहाँ पर बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि अब जो मिठाइयाँ बनने वाली है वो कैसे बनने वाली हैं और दुकानदारों पर क्या क्या असर पड़ा है। अभी जो शक्कर का दाम बढ़ा है, क्या कहेंगे? शक्कर का बढ़ा है वो तो अब सर्वव्यापी है, ऑल ओवर इंडिया बढ़ा है। लेकिन अब राखी पर्व ऐसा बहन लोग का है और बहन लोग का मिठाई तो देना कंपलसरी है, पर हम लोग जहाँ तक कोशिश करेंगे रेट नहीं बढ़े। हमारा जो नफ़ा का धोरण है वो कम करके भी वही रेट में देने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये आया है एकदम से भाव बढ़ गया है और बड़ा है वो 100% है। जैसे 40 रुपये की शक्कर 80 रुपया हो गई है और बढ़ सकते मतलब किलो पे 10-20 रुपये का फ़र्क आएगा, ज़्यादा नहीं फ़र्क आएगा ज़रूर। उससे जो आप मिठाइयाँ रोज़ाना बनाते होंगे उसमें कितना फ़र्क आने वाला है? और जैसा आपने कहा कि आप कोशिश करेंगे कि भाव ना बदले, तो फिर कैसे आप मैनेज करने वाले हैं उस चीज़ को?
मैनेज में तो ऐसा है भाई 10 रुपया मिलेगा तो 5 रुपया मिलेगा, नफ़ा में कटौती हो जाएगी, क्योंकि बाहर माल से बाहर आएगा उसको तो पूरा के पूरा पैसा देना है। लेकिन हमारा नफ़ा 20 होगा तो 10 कर देंगे, लेकिन जब तक बनेगा तब तक वही रेट में देने की कोशिश करेंगे कस्टमर को। अगर ये मतलब लंबे समय तक चला कि और थोड़ा भाव बढ़ गया तो? लंबे तक चलेगा तो उसमें भी आगे का त्यौहार गणपति है, तो गणपति में जैसे अब लड्डू का है तो लड्डू 200 रुपये बिक रहा है तो 240-280 तक पहुंच सकता है। और इसमें तो ज़्यादातर दूध और खोआ और शक्कर बहुत कम प्रमाण में आती है, तो जितना देखो अब भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गणपति में 100% फ़र्क आ जाएगा। मतलब अभी जैसा आपने कहा कि 10-20 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, उसमें जो फ़र्क पड़ने वाला है वो शायद आपको जो मुनाफा मिल रहा है उसमें कम मुनाफा मिलेगा, लेकिन जो लोग आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी में कोई असर ऐसा पड़ेगा? नहीं, उससे साथ तो कनेक्टेड है ही नहीं है ये चीज़। लेबर तो ऑल ओवर बढ़ा हुआ ही है, 500-600 रुपये का जो रोज़ है वो तो चलने वाला है यहाँ 8 लाख का, उसमें तो जो दे रहे वही है, उसमें तो क्या बढ़ोतरी आएगी। हाँ, वो फ़र्क पड़ा है कि जैसे बार्गेनिंग करते थे पहले कि भाई 10-20 रुपया कम ले लो, लेकिन अभी बार्गेनिंग नहीं करते, क्योंकि ये सर्वव्यापी है कि भाई शक्कर ऐसी रोजिंदा चीज़ है, और वो भी पेपर में पढ़ते कि 80 रुपया, तो वो भी कचकच नहीं करते कि भाई ठीक है भैया दे दो, रेट बढ़ा हुआ है, उसके साथ साथ शक्कर भी बढ़ा हुआ है, गैस भी बढ़ा है, सभी चीज़ बढ़ी हुई है। और बड़ौदा सिटी ऐसा है, हाई फाई नहीं चलता है, बहुत ही प्रजा भी हिसाब से 400 रुपया 500 रुपया बहुत हो गया किलो का मावे की आइटम, और काजू की 800 से 1000 रुपया किलो चलती है, पर वही मिठाई का तुम मावे का मिठाई का 600 रुपया कर दोगे तो ग्राहक नहीं ले पाएगा। यहाँ एवरेज ही चलता है बड़ौदा में, ज़्यादा हाई फाई मिठाई नहीं चलती, और लोगों का ध्यान रखना ही पड़ता है। जैसे हमारा राजमेर रोड पे दुकान है, तो आजू बाजू की जो बस्ती है बहुत नॉर्मल है, तो उनके हिसाब से रेट ध्यान में रख के ही वही रेट चलाएंगे हम रेट नहीं बढ़ाएंगे अभी। बड़ोदरा शहर की कई ऐसी मिठाई की दुकानें जो इस वक्त पूरी तरह से तैयार है रक्षाबंधन के त्योहार के लिए, लेकिन आज की ये जो खबर अखबार में आई है, इससे क्या क्या असर हुआ है वो और भी दुकानों में जाकर जानने की कोशिश करेंगे। शक्कर का दाम बढ़ा है, उससे आपके जो धंधा है उस पर क्या असर? धंधे में शक्कर का दाम बढ़ा है, ऐसे कोशिश है उनको भी शक्कर के दाम वापिस सरकार से घट जाएंगे, कि आशा से बैठे हैं। अभी थोड़ा हम चला रहे कि थोड़ा शक्कर के दाम वापिस घट सकते हैं, ऐसा सरकार पे आशा लेके बैठे हैं कि भाई थोड़ा दाम घट जाएगा तो वापिस दाम बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा मतलब अभी आप कोई दाम नहीं बढ़ाएंगे मिठाई में? अभी मिठाई का भी दाम नहीं बढ़ा रहे, अभी नहीं बढ़ा रहे, क्योंकि पब्लिक भी थोड़ा राखी का त्यौहार है, बहनों का त्यौहार है, उनको भी बजट का असर हो सकती है। इस साल सोच रहे कि भाई थोड़ा बैठे हैं कि भाई शक्कर के दाम राखी की बात तो बढ़ेगी, ये आशा से बैठे हैं हम। जब आपने ये खबर सुनी तो सबसे पहले क्या रिएक्शन और क्या पहला थॉट था दिमाग में कि अब कैसे सब मैनेजमेंट ऐसा है कि भाई शक्कर के दाम जो बढ़ रहे हैं, जो बहुत ही काफ़ी बढ़ गए, हाँ, फिर आप सोच रहे हैं कि भाई अब ऐसा ही बढ़ता रहेगा तो हमको भी दाम बढ़ाना पड़ेगा, ऐसा यही सोच के हम बैठे हैं। तो भाई घट जाए तो थोड़ा अच्छा रहेगा, हमको व्यापारियों को तो नुकसान नहीं जाए और कुछ नहीं। बेसन की बनती है, मेरे बेसन की बनती है, मावे की बनती है, लड्डू जलेबी बनते हैं। आज सुबह से ग्राहक आ रहे हैं, उनका कुछ ऐसा रिएक्शन देखने को मिल रहा है? कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, भावताल कर रहे हैं? भावताल तो कस्टमर का उनको जरूर होता है कि भाई भावताल करना उनका रेफरेंस होता है। कस्टमर को समझा दे कि हमने भाव बढ़ाया नहीं है, वही पुराना भाव ही है। शक्कर के भी भाव बढ़ गए, कच्चे माल के भी भाव बढ़ रहे हैं, कस्टमर भी समझते हैं कि नहीं भाई सही बात है कि भाई दुकानदार जो है, कस्टमर जो लेने आते हैं उनको मालूम है कि पहले भी यही भाव था, अभी भी यही भाव है, तो सोच के वो ले जा रहे हैं अभी। जो ग्राहक यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। मैम, आपको पता है शक्कर के दाम अभी बढ़ने वाले हैं, क्या रिएक्शन था सबसे पहले? क्योंकि अभी रक्षाबंधन आ गया है, बहनों का त्यौहार है, मिठाई बहुत ज़रूरी है, अभी मिठाई के दाम भी बढ़ जाएंगे तो क्या कहेंगे? प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन अभी फेस्टिवल्स है तो लोग एनीवेज खरीदेंगे, बट येस डेफिनेटली प्रॉब्लम तो होगी सबको प्राइस बढ़ने की वजह से। बड़े तो बड़े, लेकिन मिठाई तो भैया के लिए चाहिए। कम लेंगे शायद कोई, लेकिन लेंगे तो सही डेफिनेटली। ऐसे वैसे घरेलू जो चीज़ें होती हैं हम बनाते हैं, उसमें भी शक्कर का बहुत उपयोग होता है, तो उसमें फिर कैसे मैनेज करने वाले हैं आप? सुबह की चाय से लेके तक वही सब में शायद थोड़ा थोड़ा कट ऑफ करना पड़े, बट फिर भी अब जो रिक्वायर्ड है वो तो है। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? चाय तो पीना पड़ेगा, अभी जो 5 रुपये में गुल्लक मिलती थी अभी उसका 10 रुपया हो गया बड़ौदा सिटी में चाय का,
लेकिन क्या है, जिसको मानो कि 3 बजे चाय चाहिए तो चाहिए, दाम कितना भी बढ़ेगा लेकिन चाय तो चाहिए। वीएनएम बुलेटिन में आज बस इतना ही। देश, दुनिया और शहर जिले की खबरों के साथ कल फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। आप देखते रहिए वीएनएम टीवी।